Hello students, let's start Unit 2 Humor. Reading C. Uncle Pauser hangs a picture. Means Uncle Pauser ने एक picture टांगा. A new picture would have come. एक नया पिक्चर आ चुका होगा and be standing in the dining room. Dining room means खाना खाने का कमरा और डाइनिंग रूम में रखा होगा. Waiting to be put up. और टांगे जाने की प्रतीक्षा में होगा. And Aunt Pauser would ask what was to be done with it. और Aunt Pauser पूछेगी कि इसका क्या करना है. And Uncle Pauser would say और Uncle Pauser कहेंगे Oh, you leave that to me, don't you? Any of you worry yourself about that. I will do all that. Oh, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो. तुम लोगों में से कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं करेगा. मैं सब कर लूंगा. And then he would take off his coat and begin. Take off means उतारना. और फिर वे अपना कोट उतारते हैं और शुरू हो जाते हैं. He would send the maid out for 6 penny worth of nails. नौकरानी को 6 पेनी देकर कील मंगाने के लिए भेजते हैं. And then one of the boys offer her to tell her what size to get. और बच्चों में से एक को उसके पीछे भेजते हैं कि किस साइज की कील लानी है. And from that he would gradually work down and start the whole house. फिर उसके बाद क्रमशः अपने कार्य को पूरा करते और पूरे घर को अपने काम में लगा लेते. Now you go and get me my hammer, Will. Hammer means हथौड़ा. Will, अब तुम जाओ और मुझे मेरा हथौड़ा लाकर दो. He was short. वह चिल्ला के कहते हैं. And you bring me the rule, Tom. और टॉम, तुम मेरा रूल लाओ. And I shall want the step ladder. Step ladder means सीढ़ी. और मुझे सीढ़ी चाहिए. And I had better have a kitchen chair too. और साथ ही किचन की चेयर भी चाहिए. And Jim, you run round to Mr. Googles. और जिम, तुम गोल दौड़कर मिस्टर गूगल्स के पास जाओ. And tell him, और उन्हें कहो, Daddy's best wishes. And hope his leg is better. पिताजी की शुभकामनाएं और वे उम्मीद करते हैं कि अब पैर ठीक होगा. And will he let him have his spirit level for the evening? और उनसे कहना कि क्या वे आज शाम तक के लिए अपना स्पिरिट लेवल दे देंगे. And don't you go, Maria. और मारिया, तुम कहीं नहीं जाओगी. Because I shall want somebody to hold the light. Hold means पकड़ना. क्योंकि मुझे लाइट को पकड़ने के लिए एक की आवश्यकता होगी. And when the maid come back, और जब नौकरानी आएगी, she must go out again for a bit of picture code. तो उसे फिर से बाहर जाकर पिक्चर को टांगने के लिए तार लाना होगा. And Tom, where's Tom? और टॉम, कहाँ है टॉम? Tom, you come here. टॉम, तुम यहाँ आओ. I shall want you to hand me up the picture. मैं चाहता हूँ कि तुम इस पिक्चर को उठाकर मुझे दो. And then he would lift up the picture and drop it. Lift up का मतलब होता है उठाकर देना. और फिर पिक्चर को ऊपर उठाए और वह गिरा दिए. And it would come out of the frame. और वह पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गया. And he would try to save the glass and cut himself. और उन्होंने पिक्चर के कांच को बचाने की कोशिश में अपने ही हाथ को काट लिया. And then he would jump round the room looking for his handkerchief. Handkerchief means रुमाल. और फिर कमरे में चारों ओर उछल कूद कर अपना रुमाल ढूंढने लगे. He could not find his handkerchief. उन्हें अपना रुमाल नहीं मिला. Because it was in the pocket of the coat he had taken off. क्योंकि वह कोट की जेब में था जिसे उन्होंने उतार दिया था. And he did not know where he had put the coat. और उन्हें मालूम नहीं था कि वे कोट को उतार कर कहाँ रखे थे. And all the house had to stop looking for all the other thing he had asked for and start looking for his
कोट। और घर के पूरे लोग अपने काम को करना छोड़ उनके कोट को ढूंढने लग गए। While he would dance round and get in their way, इस बीच वे कमरे में चारों ओर नाचते रहे। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? पूरे घर में किसी को नहीं मालूम कि मेरा कोट कहाँ है। I never came across such a people in all my life. Upon my word, I didn't. मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिला। मेरे बोलने के बाद भी मुझे नहीं मिला। 6 of you, तुम लोग 6 लोग हो। And you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. और तुम लोगों को मेरा कोट नहीं मिल रहा है जिसे मैं 5 मिनट पहले ही उतार कर रखा हूँ। Well, of all the, ये क्या है? Then he had get up. फिर वे उठे। And find that he had been sitting on it. और पता चला कि वे अपने ही कोट पर बैठे थे। And would call out. और चिल्लाए जा रहे थे। Oh, you can give it up. ओ तुम लोग अब छोड़ दो। I have found it myself now. अब ये मुझे स्वयं ही मिल गया है। I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. अच्छा होता कि मैं तुम लोगों से कुछ खोजने की उम्मीद को छोड़कर अपनी बिल्ली को बोलता ढूंढने के लिए। And when half an hour had been spent in tying something round his finger, और जब उनकी उंगली के पट्टी बांधने में आधा घंटा गुजर गया। And a new glass had been got, and a step ladder, and the chair, and the light had been bought. और एक नया शीशा लाया गया, सीढ़ी लाई गई, फिर कुर्सी, लाइट लाई गई। He would try again. फिर से उन्होंने कोशिश शुरू की। The whole family, including the maid and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. पूरा परिवार यहाँ तक कि नौकरानी और घर को साफ करने वाली सभी अर्ध गोलाकार में खड़े हो गए उनकी मदद करने के लिए। 2 people would have to hold the chair. 2 लोग चेयर पकड़ कर रखे थे। And a third would help him to get up on it. तीसरा उन्हें उस पर खड़े होने में सहारा दिया। And a fourth would hand him a nail. चौथे ने उन्हें कील दिया। And a fifth would give him the hammer. पांचवें ने उन्हें हथौड़ा दिया। And he would take the nail in his hand and drop it. और जैसे ही कील को उन्होंने अपने हाथ में लिया उसे नीचे गिरा दिए। There, he would say in an angry voice, now the nails gone. वहां गुस्से में उन्होंने कहा, अब कील गिर गया। And we would all have to go down on our knees and look for it. और हम सभी लोग नीचे घुटने के बल बैठकर कील को ढूंढने लगे। While he was stand on the chair, और वे चेयर पर खड़े रहे। And want to know, और जानना चाह रहे थे, if he was to be kept there all the evening, क्या वे शाम तक इसी तरह चेयर पर खड़े रहेंगे। The nail would be found at last. अंत में कील मिला। But by that time he would have lost the hammer. लेकिन उसके बाद उनकी हथौड़ी गुम गई। Where's the hammer? हथौड़ी कहाँ है? What did I do with the hammer? मैंने हथौड़ी का क्या किया? 7 of you standing all round me. 7 लोग मेरे आसपास खड़े हो। And you don't know what I did with the hammer. और तुम लोग को मालूम नहीं है कि मैंने हथौड़ी से क्या किया। We would find the hammer for him. हमने हथौड़ी ढूंढकर उन्हें दिया। And then he would have lost the sight of the mark he had made on the wall where the nails was to go in. फिर उसके बाद वे दीवार पर उस चिन्ह को भूल गए जिसे उन्होंने कील ठोकने के लिए चिन्हांकित किया था। And each of us had to get up on the chair besides him and see if we would
वी कुड फाइंड इट, और हम में से प्रत्येक उनके बगल में खड़े होकर उस चिन्ह को ढूंढने लगे। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और हम सभी ने अलग अलग जगहों पर चिन्ह को खोजा। एंड ही वुड कॉल अस फूल, और उन्होंने हम सबको मूर्ख कहा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और कहा नीचे उतर जाओ। एंड ही वुड टेक द रूल एंड मीजर अगेन, मीजर मीन्स मापना। फिर रूल लेकर पुनः माप लेने लगे। एंड फाइंड दैट he wanted half of the 31 and 38 inches from the corner and would try to do it in his head and go mad. और पता किए कि कोने से 31 का आधा और 3 से 8 इंच होना चाहिए, और इसी प्रकार करने की कोशिश करने लगे और पागल हो गए। And we would all try to do it in our heads and all get different result. और हम सभी लोग अपने मस्तिष्क से सोचने की कोशिश किए, लेकिन भिन्न परिणाम आया। And in the noise that was being made by everybody, और एक स्वर से सभी का आवाज आया कि the original number would be forgotten. Forgotten means भूल गए, कि वह संख्या भूल गए हैं। एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पॉजर को फिर से माप लेना होगा। ही वुड यूज अ बीट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम। स्ट्रिंग मीन्स धागा। इस बार उन्होंने नापने के लिए धागे का यूज किया। एंड अ क्रिटिकल मोमेंट, और निर्णायक क्षण में, व्हेन द ओल्ड फूल वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट 3 inches beyond what was possible for him reach, the string would slip. जब वह बूढ़ा मूर्ख उस स्थान के 3 इंच आगे की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वह धागा हाथ से छूट गया। एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन टू द पियानो, और वह पियानो पर गिर गए। A really fine musical effect being produced when his head and body suddenly struck all the notes at the same time. Produce means निर्मित हुआ। और जब उनका सिर और शरीर अचानक पियानो पर टकराया तो संगीत के नोट्स बजने लगे। एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। एंट मारिया ने कहा कि वह बच्चों को उनके पास ऐसी भाषा को सुनने के लिए नहीं रहने देंगी। एट लास्ट अंकल पॉजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन। अंत में अंकल पॉजर को वह स्थान मिल गया। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उस स्थान पर बाएं हाथ से कील को लगाया। एंड टेक द हैमर इन इट्स राइट हैंड, और दाहिने हाथ में हथौड़े को लिया। एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वुड स्ट्राइक हिज थंब। फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स प्रथम प्रयास में, और प्रथम प्रयास में उन्होंने अपने अंगूठे पर प्रहार कर दिया। एंड ड्रॉप द हैमर विद अ लाउड क्राई ऑन समबडी टॉयज, और हथौड़ा नीचे गिर गया और एक जोर से रोने की आवाज आई। किसी के पैर पर चोट लग गई थी। आंट मारिया वुड से क्वाइटली दैट, आंट मारिया ने धीरे से कहा कि next time Uncle Pozzer was going to hammer a nail into the wall. She hoped he had let her know in the time. अगली बार जब अंकल पॉजर दीवार पर कील ठोकेंगे तो वो पहले से इसकी जानकारी उन्हें दे देंगे, so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. ताकि वह एक सप्ताह के लिए अपनी माँ के यहाँ चली जाएंगी जब तक वह काम होगा। इस प्रकार आपका यही चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।